Good morning to all of you. Myself, Dr. B.L. Komawat, ex-professor, soil science. Now, I am going to teach the next exercise in the course fifth semester of BCC part. The object is determination of available potassium in soil by flame photometer. Determination of available potassium in soil using flame photometer. This method was given by Madsen in 1956. Madsen. Now, what is the principle? Available potassium is a combination of actionable potassium in soil plus water-soluble potassium in soil. It includes the exchangeable as well as water-soluble potassium in soil. हम दोनों को मिलाया करते हैं available potassium. Now, this potassium is determined by taking a known amount of soil and it is extracted by adding normal neutral ammonium acetate solution, and then it is filtered, and the filter is used for flame photometer for taking a sample, soil sample readings. Here in this case, we add one normal neutral ammonium acetate. The ammonium ions in the extractant will replace the potassium ions on soil colloids. And how much ammonium ions are absorbed, that can be determined. And it will give the available potassium content of the soil. Now, the apparatus in this exercise used are: number one, flame photometer, shaking machine, burette, pipette, conical flask, volumetric flask, and funnel, and filter paper. Now, what are the reagents? Number one, normal neutral ammonium acetate solution. ये जो है आपका reagent, it will extract the potassium. How it is prepared? In this case, we dissolve 77.04 gram of ammonium acetate in 900 ml distilled water, and it is adjusted at pH 7 by using either ammonium hydroxide or acetic acid. After that, the volume is made up to 1000 ml, that is 1 liter. So this is your normal neutral ammonium acetate solution. इसके बाद में हम काम लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम. इसके लिए हम क्या करते हैं? we dissolve 1.908 gram K2PO4 of AR grade in distilled water, and volume is made up to 1 liter. This solution of K2PO4 will give 1000 ppm of potassium. 1000 ppm of potassium. इसके बाद में ये आपका रिएक्शनल सॉल्यूशन ऑफ K2PO4. ना वर्किंग सॉल्यूशन, क्योंकि ये 1000 ppm का पोटेशियम का सॉल्यूशन है, ये बहुत हाई है, फ्लेम फोटोमीटर इतना ले नहीं सकता, तो भी डाइल्यूटेड है ना. तो वर्किंग हम करते हैं वर्किंग सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फोरस, ये सॉरी ऑफ पोटेशियम. तो वर्किंग सॉल्यूशन हम बनाएंगे जो आपका 1000 ppm पोटेशियम है, हम उसी से बनाएंगे वर्किंग सॉल्यूशन. हम इसको क्या करते हैं? we will take 10 ml of 1000 ml. We will take 10 ml. We will take 10 ml of 1000 ppm of potassium solution. जो हमारा 1000 ppm का हमने बनाया था,
पोटेशियम का सॉल्यूशन, उसमें से हम 10 ml लेंगे और डालेंगे 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर, है ना, और हम करेंगे वॉल्यूम मेकअप। ये हमको देगा 100 ppm पोटेशियम। तो 1000 से हमने किया 100, है ना। अभी जो 100 है ना, हम इसको काम में लेंगे। अब इसके अंदर जो आपका 100 ppm सॉल्यूशन है, उसमें से हम फिर बाद में वो निकालेंगे, है ना। विल टेक 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml and 40 ml of 100 ppm पोटेशियम, है ना। हम वो लेकर के हम डालेंगे 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और वॉल्यूम कर देंगे मेकअप। तो उसका जो बनेगा ppm वो होगा आपका 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 ppm ऑफ पोटेशियम। अब देखिए इसके लिए क्या होता है कि जैसे भी हम जब काम लेते हैं फ्लैपोटोमीटर, तो सबसे पहले हम करते हैं ब्लैंक फील्ड, यानी कि डिस्ट वाटर। इक्विपमेंट को हमने ऑन कर दिया आधा घंटे पहले, उसके अंदर आपका एयर सप्लाई कर दिया, गैस सप्लाई कर दिया, है ना, और इक्विपमेंट आपका ऑन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फीड डिस्ट वाटर, जो आपका सेकंड ट्यूब होता है फ्लैपोटोमीटर में, तो 0 रीडिंग उसमें लाएंगे हम। डिस्ट वाटर में जो है आपका पोटेशियम 0 होगा। उसके बाद हम लेते हैं जो आपका हाईएस्ट कैटेगरी का जो होता है ना आपका सॉल्यूशन पोटेशियम का, हम देते हैं। यानी कि पहले हमने डाला डिस्ट वाटर और इक्विपमेंट को हमने सेट किया 0 के ऊपर, फिर हम डालेंगे 100 ppm का, है ना, और उसकी रीडिंग करेंगे 100 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हुए क्रम में लाएंगे, है ना। 100 के बाद में जैसे आपका मान लीजिए, जैसे आपका जो होता है ना 40 ml 40 ppm, उस 40 को हम करेंगे 100 पे एडजस्ट। जो हमारे जो वर्किंग सॉल्यूशन है K2PO4 का जो हमने बनाया 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, तो मैं ये कर रहा हूँ कि पहले सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर आप फीड कीजिए और इक्विपमेंट को 0 पे सेट कीजिए। अब जो हमारा वर्किंग सॉल्यूशन है K2PO4 की, वो हमारा हाईएस्ट है 40 ppm का, तो हम 40 ppm का फीड करेंगे और रीडिंग करेंगे 100 पे एडजस्ट। इस इक्विपमेंट में ऐसा होता है, पहले हम डालेंगे डिस्टिल्ड वाटर, रीडिंग 0 आएगी, देन वी विल यूज हाईएस्ट ppm कंसंट्रेशन जो हमारे 40 ppm है, उस 40 को हमने फीड किया और 100 पे उसको एडजस्ट किया। उसके बाद में हम काम में लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे आपका 40 ppm का था, देन वी विल टेक 35, देन 30, देन 25, देन 20, देन 15 एंड देन 10, है ना। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम करेंगे। अब जो रीडिंग आएगी वी विल नोट डाउन। और ये रीडिंग है, रीडिंग आपकी आएगी क्या नाम से, जो भी फ्रीक्वेंट रीडिंग आ रही है वो आएगा आपका एक्सेस के ऊपर, और पीपीएम आपका आएगा वाई के ऊपर, है ना। तो विल ड्रा स्ट्रेट लाइन कर्व, है ना, स्टैंडर्ड कर्व। और जो ये आपका नॉन सॉल्यूशन का है, अब हम अननोन सॉल्यूशन जो हमारा सॉइल सैंपल है हम उसका यूज करेंगे। तो जो वैल्यू आएगी, कितना भी उसका रीडिंग आ रहा है, उस ग्राफ डालेंगे, नीचे जो आपका डायरेक्ट परपेंडिकुलर लंब डाल करके कितना आपका पीपीएम आ रहा है वो हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें क्या सिस्टम है, क्या मेथोडोलॉजी है। इसमें हम 5 ग्राम सॉइल लेते हैं, एयर ड्राई सॉइल, टेक 5 ग्राम सॉइल इन 150 ml कॉनिकल फ्लास्क। 150 ml का फ्लास्क है, उसमें 5 ग्राम सॉइल हम तोड़ के डाल दिया। उसके बाद में हम डालेंगे 25 ml हो न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिड सॉल्यूशन, और वो सेक करेंगे, है ना, सेक फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद में हम करेंगे फिल्टर करेंगे। फिल्टर में क्या है, फिल्टर के बाद में हम जो भी आपका फिल्टर आ रहा है उसको हम करते हैं फीड इक्विपमेंट में, है ना। तो कितने रीडिंग आ रही है वी विल नोट डाउन। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ डिटरमाइनिंग द अवेलेबल पोटेशियम कंटेंट इन सॉइल। अब जो आपके जो भी ऑब्जर्वेशन, उसमें नंबर 1 होगा वेट ऑफ सॉइल टेकन 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्ट तो हमने 5 ग्राम सॉइल लिया था, 25 हमने ml डाला था 1 नॉर्मल न्यूट्रल अमोनियम एसिड, तो वॉल्यूम हुआ 25 ml।
फिर हमने उसमें से जो है वो लिया, मतलब उसका जो रीडिंग ली वो मानते हैं x, मान लीजिए, है ना, रीडिंग x आ गई फ्लोपोमीटर की। उसके बाद में हम जो कर्व जो आपका आएगा उस पर कितनी की वैल्यू आएगी पीपीएम में, वो हम नोट करते हैं। तो इसका जो हुआ कैलकुलेशन पीपीएम ऑफ अवेलेबल पोटेशियम इन केजी पर हेक्टर ये होगा आर मींस पीपीएम ऑफ अवेलेबल पोटेशियम फ्रॉम ग्राफ, है ना, या फ्रॉम द कर्व इनटू वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्ट जो 25 ml था अपॉन वेट ऑफ सॉइल हमने 5 ग्राम लिया था, है ना, इनटू 2.24, है ना, ये आपका हो गया अवेलेबल पी इन केजी पर हेक्टर। अब हमको सॉरी अवेलेबल पोटेशियम इन केजी पर हेक्टर, अब हम करेंगे कन्वर्ट अवेलेबल K2, तो K से K2 में करने के लिए हम गुणा कर देंगे जो आपका अवेलेबल क्या आया हम गुणा करेंगे 1.23 से, तो आपका हो जाएगा अवेलेबल K2 इन केजी पर हेक्टर। अब इसकी रेटिंग हो चुकी है ना, कि भाई कितना क्या होगा, कितना बहुत लो होगा, कितना बहुत मीडियम होगा और कितना बहुत हाई होगा। तो इन जनरल जो रेटिंग जो है इसके अंदर दो तरह से रेटिंग है ना, एक दिया था मूर इटाल इन 1965 जो आज भी वैलिड है, उसमें से ये बताया कि जो आपका जो अवेलेबल K2 है अगर 125 kg से कम है, लेस देन 125 kg K2 पर हेक्टर हम कहेंगे लो, और 125 से 300 के बीच में आ रहा है हम कहेंगे मीडियम, और 300 के ऊपर आ रहा है आपका अवेलेबल K2 केजी पर हेक्टर हम कहेंगे हाई। ये तीन कैटेगरी है, लो, मीडियम एंड हाई। अब इसके अलावा इसमें और भी है, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम निकालें अवेलेबल K, है ना, तो लेस देन 120 kg K पर हेक्टर हम कहेंगे सॉलिड लो इन अवेलेबल पोटेशियम, और 120 से 180 kg पर हेक्टर आ रहा है ना, तो हम कहेंगे सॉलिड मीडियम इन अवेलेबल K, और मोर देन 180 आ रहा है, 180 से ऊपर आ रहा है, हम कहेंगे सॉलिड हाई इन अवेलेबल पोटेशियम। ऐसे इसके अंदर इसके अनुसार जो गुणा करके हम देखते हैं ना, ये आपका जो अवेलेबल पोटेशियम जो है जो आया उसको गुणा कर दो आप 1.2 से, वी विल गेट अवेलेबल K2, ये K है ये, है ना, K को हम करें कन्वर्ट K2 में तो हम गुणा करेंगे 1.2 से, तो उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, वो होगा इसके अंदर लेस देन 150 ये लो होगा, ये 50 220 ये मीडियम होगा, और मोर देन 220 ये हाई होगा। मगर आज भी जो है मूर इटल वाला वो वैलिड है, उसमें जो रेटिंग दिया हुआ है वो है अवेलेबल K2 होगा। इसमें क्या है कि 125 से कम अगर आपका K2 है, 125 kg K2 पर हेक्टर हम कहेंगे लो, 125 से 300 बीच में अगर आ रहा है आपका अवेलेबल K2 पर हेक्टर हम कहेंगे मीडियम, और मोर देन 300 आपका आ रहा है kg K2 पर हेक्टर हम कहेंगे हाई। तो ये इसके अंदर है। अब इसमें जो है जो प्रिकॉशंस हैं वो भी हम फॉलो करेंगे। पहला हमारा जो सावधानी है वो ये है कि pH ऑफ द अमोनियम स्टेट सॉल्यूशन शुड बी एट 7, हम करें न्यूट्रल है, न्यूट्रल मींस आपका 7 pH होना चाहिए, है ना। हम 7 कैसे लेंगे, either we will add ammonium hydroxide or acetic acid and will maintain pH 7 न्यूट्रल, ये इसका पहला प्रिकॉशन। दूसरा क्या है, इन फ्लैम फोटोमीटर gas and air pressure should not fluctuate during determination. During determination, this will be steady, वो फिक्स होना चाहिए। एयर एंड गैस का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, वरना आप रीडिंग सही नहीं आएगी। ये दूसरी सावधानी है। थर्ड, जब फिल्टर करते हैं ना, जैसे 5 ग्राम सॉइल लिया, 25 ml हमने डाला न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम स्टेट, है ना, फिल्टर किया, तो स्टार्टिंग वाला जो आ रहा है फिल्टर हम उसको थोड़ा ढंग देते हैं, है ना, तो few ml of filtrate in the beginning should be rejected, है ना, 2-5 बूंद आ रही है उसको आप कान में मल लो, उसके बाद आप डाल लो, वो काम में लो आप, ये भी इसमें एक सावधानी है। और इसके लिए जब हम पोटेशियम लगा रहे हैं तो फ्लैपोटोग्राफी फिल्टर होता है, तो वी विल यूज पोटेशियम फिल्टर, यूज द प्रॉपर फिल्टर ऑफ पोटेशियम एंड डू नॉट टेक द रीडिंग विदाउट फिल्टर। बगैर फिल्टर हम रीडिंग नहीं लेंगे,
हम उसको फिल्टर होता है, जैसे उसका फुटोमीटर है, उसमें 3 फुटो में पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो हमें पोटेशियम निकालना, पोटेशियम को डालना चाहिए, है ना। तो फिल्टर जो है उसको यूज करना चाहिए, है ना। और दिस इज ऑल अबाउट द डिटरमिनेशन ऑफ available potassium in soil. Thank you very much.